مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ آیا ہے وَنَحَرْ، اور یہ ضابطہ وصول ہے کہ جب کوئی حکم مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے ذکر کیا جائے تو اس سے وجوب مراد ہوتا ہے، یعنی واجب مراد ہوتا ہے۔ لہذا لفظ وَنَحَرْ سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے، اور یہ واجب کسی دنیا دار نے نہیں کیا ہے بلکہ پروردگار نے کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر وَنَحَرْ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ قربانی جو ہے واجب ہے، قربانی واجب ہے، اور یہ واجب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر کیا ہے، مسلمانوں پر کیا ہے۔ اب جو شخص قربانی کے خلاف زبان کھولتا ہے یا بحث و مباحثہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے اس آیت کریمہ کی تلاوت جو ہے بار بار کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے اس کی عقل میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ قربانی جو ہے یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو انسان نے جو ہے انسان پر مسلط کر دیا ہو، نہیں، بلکہ یہ قربانی جو واجب ہوئی ہے اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اور اس کا واجب ہونا قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو، یعنی اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے اس کا نام جو ہے ذوالحجہ ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے سے رک جائے، یعنی جب ماہ ذوالحجہ کا چاند ہو جائے اور جس کا یہ ارادہ ہو کہ میں جو ہے قربانی کروں گا، تو اس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ نہ وہ اپنے بالوں کو بنوائے اور نہ اپنے ناخنوں کو ترشوائے۔ اب اس حدیث پاک کے بارے میں فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ حکم استحبابی ہے، یعنی مستحب ہے، یہ چیز جو ہے مستحب ہے، اگر انسان جو ہے کرتا ہے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس پر جو ہے کوئی پکڑ نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان اس پر نہیں عمل کرتا ہے تو حکم عدولی بھی نہیں ہوگی، یعنی اس نے جو ہے شریعت کے خلاف نہیں کیا، ایسا نہیں کہ کرنے والا جو ہے گناہگار ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ نہ قربانی میں نقص آئے گا، یعنی اس کے کرنے کی وجہ سے قربانی پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مطلب یہ کہ اگر قربانی کرنے کا آپ کا ارادہ ہے اور آپ نے پھر بھی جو ہے اپنے بالوں کو بنوا لیا، ناخن کو تراش لیا، تو اس سے جو ہے آپ کی قربانی پر کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کی قربانی جو ہے ہو جائے گی۔ اور آگے
सरकार आला हजरत अलैहि रहमा लिखते हैं, बल्कि अगर किसी शख्स ने 31 दिन से किसी उज्र के सबब ख्वाह बिला उज्र नाखून तराशे जो है नाखून ना तराशे हो, ना खत बनवाया हो, और जो है जुल्हिज्ज का चाँद हो गया, तो वो अगर कुर्बानी का इरादा रखता हो इस मुस्तहब पर अमल नहीं कर सकता। यानी अगर किसी शख्स ने जो है माह जुल्हिज्ज का चाँद होने से पहले 31 दिन गुजर चुका है, अब जो है माह जुल्हिज्ज का चाँद हो गया और वो कुर्बानी करने का इरादा रखता है, और मेरे आका का ये फरमान है कि जब माह जुल्हिज्ज का चाँद हो जाए तो ना बाल बनवाया जाए ना नाखून तरशवाया जाए। तो अब ऐसा शख्स जिसने 31 दिन से नहीं बनवाया है और उसको जो है वक्त नहीं मिला या किसी वजह से जो है उसने जो है ना बाल बनवाया ना नाखून तराशा और माह जुल्हिज्ज का चाँद हो गया, तो अब उसके लिए हुक्म ये है कि वो जो है बाल बनवाए नाखून तरशवा ले, इस हुक्म पर अमल ना करे। क्यों? क्योंकि 40 दिन से ज्यादा जो है नाखून ना तरशवाना, बाल ना बनवाना जो है ये इस्लाम के अंदर गुनाह है। गुनाह में वो शख्स जो है मुब्तला हो जाएगा जो ऐसा नहीं करेगा। तो अब मुस्तहब पर अमल करने के लिए जो है गुनाह वाले काम हरगिज नहीं किए जा सकते। तो इसलिए इस चीज को भी जो है अपने सामने रखना चाहिए कि क्या मैं जो है अगर इस पर अमल करता हूं तो गुनाहगार तो नहीं हो जाता? क्या मैंने जो है इतने दिनों से बाल नहीं बनवाए या नाखून नहीं तरशवाया? इस चीज को भी अपने सामने रखना पड़ेगा। और अगर आपने जो है पहले बाल या नाखून तरशवा लिया है, ऐसा कोई मसला नहीं पैदा होता कि 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर जाएगा, तो आप जो है अपने आका के इस फरमान पर जरूर अमल करें कि मेरे आका ने फरमाया कि जब माह जुल्हिज्ज का चाँद हो जाए तो अगर तुम्हारा कुर्बानी करने का इरादा हो तो ना नाखून जो है तरशवाओ और ना बाल बनवाओ। अब मेरे मुसलमान भाइयों, मिरातुल मनाजी के अंदर है कि हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जो कुर्बानी न कर सके वो भी जो है इस अशरे में हजामत ना कराए, बकरा ईद के दिन बाद नमाज़े ईद हजामत कराए तो इंशाअल्लाह कुर्बानी का सवाब पाएगा। यानी अगर कोई शख्स जो है कुर्बानी न करने का इरादा रखता है फिर भी जो है इस हदीस पाक पर अमल करता है कि वो चाँद निकलने के बाद से ना नाखून तरशवाता है ना बाल बनवाता है, और कब बनवाता है? ईदुल अजहा की नमाज अदा करने के बाद। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उसको भी जो है कुर्बानी का सवाब मिलेगा, उसको भी कुर्बानी का सवाब मिलेगा। और मेरे मुसलमान भाइयों, अब तो जो है बड़े नाखून रखना लोगों का फैशन बन चुका है। बड़ा नाखून रखना फैशन बन चुका है, जो कि बड़ा नाखून रखना मुसलमान का काम नहीं है, क्योंकि इस्लाम में 40 दिन के अंदर अंदर नाखून तराशने का हुक्म है। इस्लाम के अंदर 40 दिन के अंदर अंदर जो है नाखून तराशने का हुक्म है, और बिला उज़्र शरई 40 दिन से ज़ायद कर देना नाजायज़ व गुनाह है। अगर कोई शख्स बिला उज़्र शरई जो है 40 दिन से ज़ायद कर देता है तो वो जो है गुनाहगार होता है। और मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद के अंदर है कि जो मुँह ज़ेरे नाफ और नाखून ना तराशे
और मोछ ना काटे वो हम में से नहीं। मेरे आका ने फरमाया कि जो मुँहे ज़ेरे नाफ और नाखून न तराशे और मोछ ना काटे वो हम में से नहीं। मतलब क्या? वो मेरे आका के तरीके पर नहीं है, वो शख्स मेरे आका के तरीके पर नहीं है। अब जो शख्स बड़ा बड़ा नाखून रखता है, 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर जाता है, वो इस फरमान के मुताबिक जो है, जो मेरे आका ने फरमा दिया कि जो ऐसा करता है वो मेरे तरीके पर नहीं है, उसको जो है इस हदीस पाक को अपने सामने रख कर जो है सोचना चाहिए कि मैं कौन से रास्ते पर जा रहा हूँ। जो तरीका मेरे आका ने दिया है मैं उस तरीके पर जा रहा हूँ या शैतानी तरीके पर जा रहा हूँ। और मिरकातुल मफातिह के अंदर है कि जो जुमा के दिन नाखून तरसवाए, अल्लाह ताला उसको दूसरे जुमा तक बलाओं से महफूज रखेगा। जो जुमा के दिन नाखून तरसवाए, अल्लाह ताला उसको दूसरे जुमा तक बलाओं से महफूज रखेगा और 3 दिन जायद यानी 10 दिन तक जो है वो शख्स जो है बलाओं से महफूज रहेगा। कौन शख्स? जो जुमा के दिन जो है नाखून तरसवाता है। तो मालूम क्या हुआ कि जुमा के दिन जो है नाखून तराश लेना चाहिए, नाखून तराश लेना चाहिए। और फायदा ये हासिल हो जाएगा कि 10 दिन तक जो है वो शख्स बलाओं से महफूज हो जाएगा। और बहार शरीयत के अंदर है कि फिर ये कि नाखून तराशना जहां एक तरफ सेहत का बाइस है, यानी नाखून तराशने वाला शख्स जो है बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है, क्योंकि जब नाखून बड़ा होता है तो उसके अंदर जो है तरह तरह की जरासीम बैठ जाती है और जब हम खाना वगैरह खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर जरासीम जो है पहुंच जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो जहां पर नाखून काटने से जो है सेहत का बाइस यानी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, तो दूसरी जानिब जो है सुन्नत वो मुस्तहब पर अमल है, यानी मेरे आका के तरीके पर अमल भी हो रहा है और बंदा सुन्नत के मुताबिक इन्हें तराश कर सवाब का मुस्तहिक ठहरता है। अब अगर कोई शख्स जो है सुन्नत के मुताबिक नाखून तराशता है तो उसको जो है सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी मिल जाएगा। जहां पर हमको दुनियावी फायदा हासिल हो रहा है वहीं पर जो है हमको सवाब भी मिल रहा है। इसलिए जो है 40 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं गुजरने देना चाहिए, बल्कि 40 दिन से कम जो है 40 दिन के अंदर अंदर ही जो है अपने नाखून को तराश लेना चाहिए और सुन्नत के मुताबिक जो है तराशना चाहिए, ताकि सुन्नत का भी सवाब मिल जाए और दुनियावी फायदा भी हासिल हो जाए। अब सुन्नत के मुताबिक हम नाखून किस तरीके से तराशेंगे, यानी मेरे आका का कौन सा ऐसा तरीका था कि जिस तरीके से मेरे आका नाखून को तराशते थे। तो जब आप अहादीस की किताबों के अंदर देखेंगे तो 2 तरीका जो है मेरे आका का मिलता है, यानी 2 हदीसें पाक हदीसों की किताबों के अंदर मिलती है, जिसमें से आसान जो तरीका है वो ये है कि इस तरीके से नाखून तराशा जाए कि पहले जो है शहादत की जो उंगली है इसको जो है इसके नाखून को काटा जाए, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके ये वाली, फिर जो है ये छोटी वाली अंगूठे को छोड़ दिया जाए। फिर यहाँ से बाएं हाथ में जो है सबसे छोटी वाली जो उंगली है यहाँ से शुरू किया जाए, फिर इसको काटा जाए, फिर इसको, फिर अंगूठे को, फिर आखिर में जो है दाहिने हाथ के अंगूठे को काटना चाहिए। ये सुन्नत तरीका है और सुन्नत तरीके से आप नाखून को तराशेंगे तो सुन्नत पर अमल करने का भी
सवाब मिल जाएगा। और पैर का जो नाखून है उसको जो है छोटी उंगली से शुरू करेंगे और सीरियल से जो है काटते चले जाएंगे, आखिर में जो है छोटी वाली उंगली पर जाकर खत्म कर देंगे। ये पैर के नाखून काटने का तरीका है। और हाथ का जो तरीका है वो यहाँ शहादत की उंगली से जो है शुरू करेंगे। तो अब अगर हम अपने आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक जो है नाखून को तराशते हैं तो हमको सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब मिल जाएगा और बहुत सारी दुनियावी बीमारियों से जो है हम महफूज हो जाएंगे। और मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब माह ज़ुल्हिज्ज का चाँद हो जाए और अगर कुर्बानी करने का इरादा हो तो ना जो है अपने बालों को कटवाया जाए और ना नाखून को तराशा जाए। इस हदीस पाक पर भी अमल करके जो है हम ज्यादा से ज्यादा जो है सवाब जमा कर सकते हैं। इसलिए इस हदीस पाक पर भी अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला